Welcome, friends, to this second day of our seminar. Today, we have three learned scholars, Dr. Dev Sharma, Ravi Shankar, and Alka Arya. हमारे तीनों जो वक्ता हैं तीनों ही बड़े विद्वान हैं और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है. To start with, I would like to invite Vinita ji to introduce our first speaker, धन्यवाद Dr. Dev Sharma. धन्यवाद Dr. Ravi Prakash ji Vinita. and namaste. Namaste to all our honorable guests and everyone who has joined us today for the second day of this 5-day seminar. I would now like to introduce the first speaker, Dr. Dev Sharma Vedalankar ji, who will present today's first lecture. Dr. Dev Sharma Vedalankar ji was born in 1965 in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, into the renowned family of Pandit Harpal Shastri ji. In 1985, he was awarded from Gurukul Kangri University, Haridwar, the prestigious title of Vedalankar for his in-depth study of the Vedas. In 1998, he was conferred with a doctorate from the University of Delhi for his comparative study on Patanjali Yoga Sutra. Dr. Dev Sharma Vedalankar ji is a Vedic orator, motivational speaker, and family counselor, and he has made it his mission to make people aware of the significance of human values through the scientific sources mentioned in the Vedas, and in books such as the Satyat Prakash Sanskar Vidhi, as well as those on yoga. Up till now, over 80,000 copies of his books have been distributed to people all over the world. A selection of his works are on subjects such as childbirth and how and why one should use the sanskar process. Regarding childbirth, Vedalankar ji has, with contributions from his wife, devised a comprehensive program for the creation of a designer baby. He delivers teen counseling as well as pre and post-marriage counseling. He has conducted special research on the scientific process of choosing a life partner in his publication Milan Patrika. In Garbha Vigyan Sangeet, he has elaborated on the science of music. And in Divya Aushadhi, he has educated the public on general health and medicine. He has authored many published books, among which are Man Chahi Santan, Saat Kadam Mere Sang, Hum Kyo Padhte Hain, Why Do We Study? Dr. Dev Sharma Vedalankar ji, after this short introduction, I would like to invite you on behalf of the Maharishi Dayanand Chair, the organizers of this seminar, to deliver the first lecture in today's session on Vedic genome engineering, with particular emphasis on the first three sanskars. Dr. Dev Sharma Vedalankar ji, the floor is yours. Om Bhur Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. समादरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रवि प्रकाश जी, सम्मान्य विनीता जी और सभी सभ्यागत भतपुरुषों, वंदनीय मातृ शक्ति, आज का हमारा ये सौभाग्य है कि एक इतने सुंदर कार्यक्रम जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है और संस्कारों को लेकर के जो कार्यक्रम है, जिसको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। जितना भी काम किया है वो सबका सब प्रैक्टिकल है। मैंने लगभग 94 में इन चीज़ों को जाना। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो लोग कहते थे कि
बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं। मैंने महर्षि दयानंद की संस्कार विधि में पढ़ा कि तुम जैसी चाहो वैसी संतान बना सकते हो। तो मुझे ये बातें सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता था कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं। यहाँ से मैं अपनी रिसर्च, अपना शोध कार्य प्रारंभ करता हूँ, और जब मैंने इन संस्कारों के माध्यम से इन बहुत अच्छी बातों को पढ़ा, सुना, तो मैंने इन सबको प्रैक्टिकल करने का विचार किया। और सबसे पहले मैंने खुद ही अपने परिवार पर इन संस्कारों को प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया। तो जैसा कि हम संस्कार के माध्यम से जानते हैं कि संस्कार जो शब्द ही है अपने आप में सम धातु, सम उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु से बना है, और जिसका अर्थ शुद्ध करना है, उन्नत करना है। इन अर्थों को जानते हुए जब हमने इस कार्य को शुरू किया और अपने प्राचीन काल के इतिहास को देखा, तो जहां महाराज रघु, दिलीप, दशरथ, भगवान श्री राम और उनके सारे भाई, और भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, उनके अभिमन्यु और द्रौपदी, प्रद्युम्न, दृष्टिद्युम्न, इस प्रकार के अनेक महापुरुषों को देखा, पढ़ा, सुना, और उनका जीवन किस प्रकार से निर्मित हुआ था, जब इन सारी बातों पर विचार किया तो एक बहुत अच्छा विश्वास हमारे अंदर जागृत हुआ। इसी बीच एक मैंने जीनोम, मानव जीनोम को ले समय ही बच्चे का लिंग इच्छानुसार सुनिश्चित किया जाना संभव है। डीएनए के पुनर्सज्जित रिकॉम्बिनेंट शोध से बच्चे को खूबसूरत, प्रतिभाशाली और स्वस्थ बनाना संभव है। हृदय रोग, मधुमेह और तरह तरह की एलर्जी से बच्चों को जन्म से छुटकारा दिलाना संभव है। बुढ़ापे पर लगाम लगाने की संभावना है। इस तरह की बहुत अच्छी बातें पढ़ी, और साथ साथ ये भी पढ़ा कि जेनेटिक सूचनाओं के दुरुपयोग की आशंका, डिजाइनर बेबी पैदा कर नई आदर्श या उच्च प्रजाति अथवा नस्ल खड़ी करने की आशंका। जब मैंने ये सारी चीज पढ़ी तो मुझे बहुत कुछ विचार करने का अवसर मिला। और मैंने एक चीज और पढ़ी, इनको पढ़ते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं, ये तो इधर साइंटिस्ट लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन ये कही थी मुझे 2000 में एक पेपर में पढ़ने को ये सारी चीजें मिली, लेकिन मैंने 94 से एक चीज पढ़ी, क्या, जिससे संतान अति बुद्धिमान, रोग रहित, शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला होवे, अर्थात एक्सीलेंट माइंड, एक्सीलेंट हेल्थ, फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज, और जिसके गुण कर्म स्वभाव भी शुभ होंगे। तो जब ये चीजें मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने ये काम करने का प्रयास किया। एक और बड़ी महत्वपूर्ण रिसर्च मेरे जीवन में आई। अपने यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल में एक लेक्चर था बर्थ डिफेक्ट को लेकर के। एम्स के जेनेटिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स का कहना है कि देश में 33 में से एक बच्चा बर्थ डिफेक्ट्स के साथ में जन्म लेता है। इसकी मुख्य वजह महिलाओं में इन्फेक्शन तथा उनकी अपनी बीमारी है। उन्होंने कहा कि 70% मामलों में इससे बचा जा सकता है। 4 से 5 हजार ऐसे डिफेक्ट वाले बच्चों को रेफर किया जाता है। किसी का दांत खराब होता है, बीच में मंदबुद्धि जैसी बीमारियां हो सकती है। तो ये सारी की सारी एक भूमिका मेरे सामने बनी, और इसको लेकर के मैंने अपने संस्कारों पर दृष्टि डालने का प्रयास किया। तो मैंने सबसे पहले गर्भाधान संस्कार को देखा, और गर्भाधान संस्कार को देख करके उनके पहले 20 मंत्रों से आहुति देने का जो प्रावधान है, तो मेरा मस्तिष्क खुल गया। उन 20 मंत्रों में बात आई है, 20 मंत्रों में 5-5 मंत्रों को लेकर के
स्त्री के शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या डिजीज हो सकती है, इस बात को उन्होंने कहा। पहले 5 मंत्रों में कहा, यास्या पापी लक्ष्मी तनु कामस्या अपजही। इस स्त्री के शरीर में दोष हैं, बुरे लक्षण हैं, उन सबको दूर करना है। और लिखा है कि एनी रिचेस थ्रू, इस प्रकार की कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को पहले ही दूर करना है। दूसरे 5 मंत्रों में कहा, पतिग्नि तनु, जो पति की आयु, मन, शरीर की घातक देह है, उसको ठीक करना है। तीसरे मंत्र में कहा, बंध्यात्व दोष मुक्त करना शरीर को, इन एबिलिटी टू बी अ चाइल्ड। चौथा है अपसव्य तनु, प्रतिकूल ले जाने वाला शारीरिक दोष, वाइफ विल नॉट कोऑपरेट, अर्थात जो पत्नी पति के प्रतिकूल आचरण करती है। 4 बातें ये आई वहां पर गर्भाधान संस्कार में। तो इससे एकदम मेरे माइंड ने काम किया और प्री कंसेप्शनल केयर पर मैंने ध्यान देना शुरू किया। और मैंने इस चीज को जानने का प्रयास किया। अपने यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल, अपने यहाँ अपोलो और जितने भी अपने रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं, उनकी वेबसाइट को देखा कि क्या कहीं मुझे प्री कंसेप्शनल केयर के ऊपर कुछ मैटर मिलेगा। तो वो मैटर मुझे यहाँ नहीं मिला, वो मुझे यूके में मिला। यूनाइटेड किंगडम का NHS, उन्होंने इतना अच्छा डिजाइन किया हुआ प्री कंसेप्शनल केयर, मैं उसको देख करके दंग रह गया। और मैंने यहाँ एक और कुछ बातों को पढ़ा कि कुछ साल पहले, 100-200 साल पहले, इटली, रोम, ये देश अपने यहाँ इस प्रकार का इन्होंने कानून बनाया हुआ था कि जो भी बच्चा विवाह करेगा तो उससे पहले वो कितना कैपेबल है, या मैरिज को जानता भी कि नहीं जानता है, क्या वो अच्छे बच्चे उत्पन्न करने के लिए कैपेबल है, इन सब का वहां ध्यान रखा जाता था। तो मैंने ये सोचा, देखा, मैंने विचार किया कि अपने यहाँ सारी विद्या है, कितनी नॉलेज है अपने यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ इन चीजों पर काम नहीं हो रहा है और बाहर विदेशों में काफी लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज देखा और देख करके मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली पर प्रैक्टिकल किया। और जब मैंने ये किया, उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी जितनी नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग मैंने ये देखा कि मेरे बच्चों में, जो महर्षि दयानंद ने लिखा है कि एक्सीलेंट माइंड, एक्सीलेंट हेल्थ, फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज, ये सारी की सारी बातें एज इट इज आई, उन बच्चों में ये सारी क्वालिटीज आई। तो फिर मेरे अंदर ये विचार दृढ़ हुआ और मैंने ये संकल्प लिया कि मैं इस विद्या का प्रचार पूरे भारत में करूंगा। पूरे भारत में नहीं, अगर कहीं बाहर भी मुझे जाने का अवसर मिला तो मैं इस विद्या का प्रचार सब जगह करूंगा। और उससे ये एक अच्छा विचार बनते बनते मेरे अंदर इतनी दृढ़ भावना बनी कि मैंने एक पुस्तक लिखी, मन चाहे संतान, जिसके 16 एडिशन निकल चुके हैं, 17 एडिशन निकल चुके हैं। और उस पुस्तक के माध्यम से मैं बहुत सारे यूथ से, बहुत सारे न्यूली मैरिड कपल से जुड़ा। और जब वो मेरे पास में आए तो फिर मैंने उनको इस विद्या को दिया। और आज सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो इस विद्या के थ्रू जिन्होंने जन्म लिया और जिनके पेरेंट्स एक ही बात कहते हैं कि हमारा बच्चा 1000 बच्चों में भी अलग है, हमारा बच्चा बहुत बुद्धिमान है, हमारा बच्चा बहुत सिंसियर है, हमारा बच्चा बहुत ओबीडियंट है, हमारा बच्चा बहुत हेल्दी है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आने लगे। तो हमने ये सारी की सारी चीजें बहुत ही सिंसियरली और बहुत अच्छी प्रकार से हमने इनको जानने का, समझने का प्रयास किया। और आज तो अनेक कपल्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो इस विद्या को ग्रहण करते हैं। और ऐसे ऐसे यूथ आते हैं कि जो ये कहते हैं कि मैं एक दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता हूँ। एक पायलट मेरे पास में आए, कहते मैं एक दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता हूँ, आप बताइए कैसे इतने अच्छे बच्चे को जन्म देंगे। मैंने कहा आप चिंता ना करिए, डोंट वरी, प्लीज कम टू मी एंड लिसन टू मी। आप आओ मेरे पास में, मुझे सुनते रहो। जब उन्होंने सारी चीजों को सुना केयरफुल्ली, उन्होंने 2 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन किया और उसके बाद में जो उनके यहाँ संतान आई उसको देख करके वो सरप्राइज हुए, आश्चर्य हुआ। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, जो गर्भाधान संस्कार है ये कोई सामान्य संस्कार नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि कुछ मंत्र पाठ करके, कुछ मंत्रों का पाठ करके, कुछ हवन करके इस संस्कार को हम पुत्रेष्टि यज्ञ का नाम दे करके कंप्लीट कर देंगे
और इससे शायद हमारा काम पूरा हो जाए। तो जब मैंने इसको देखा तो मैं इन आने वाले जो कपल्स हैं इनको एक ही बात कहता हूं कि अगर आप केवल ये संस्कार कराना चाहते हो और केवल इतना सा कि 1-1.5 घंटे का प्रोसेस है, तो हो सकता है, तो इससे आपको लाभ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा, लेकिन इतना लाभ नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी पत्नी को जो सर्विस करती थी उसकी सर्विस को उन्होंने छोड़ दिया, टीचर थी, और उन्होंने नेचुरोपैथ का डिप्लोमा किया 4 साल का, और उन्होंने फिर डिग्री कोर्स किया उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से नेचुरोपैथ पे, और उन्होंने मेरी हेल्प की। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उन कपल्स को जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं या जो बहुत अच्छे बच्चे चाहते हैं, हम उनको 3 to 6 और 7 मंथ की प्री कंसेप्शनल केयर अर्थात उनकी बॉडी को डिजीज फ्री करते हैं। जैसे गर्भाधान में लिखी बात, उनके शरीर को डिजीज फ्री करते हैं और उनके माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो वो लोग अच्छा करते किससे हैं, इन मंत्रों में, गर्भाधान के मंत्रों में आया है कि अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, इन सभी से आपको क्योर करना है। तो हमने ये देखा कि अधिकतर लोगों का खान पान बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका रहन सहन ठीक नहीं है। तो हम उनका एक डाइट रूटीन बना करके, एक डाइट चार्ट बना करके और एक डेली रूटीन बना करके उनको, एक बेटी तो ऐसी आई कि उसको सीवियर माइग्रेन था, और केवल हमने उस माइग्रेन को और डेली रूटीन को, उनके खान पान को, उनकी डाइट को ठीक करके कर दिया। कोई ऐसी हार्ड मेडिसिन नहीं, जबकि उनको इंजेक्शन लेना पड़ता था, विदाउट इंजेक्शन लिए वो पेन उनको ठीक नहीं होता था। तो हमने ये देखा, हम ये करते हैं कि जब तक कि उन कपल्स के डिजीज फ्री नहीं कर लेते हम लोग, उनको सारी डिजीज उनकी दूर नहीं कर देते हैं और उनका माइंड रिलैक्स नहीं कर देते हैं और उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं देते इस बारे में, यू वोंट बिलीव, आप आश्चर्य करेंगे, मैं 20-25 साल से रिसर्च कर रहा हूं और मैं डेली उन कपल्स की प्रॉब्लम्स को सुन करके उनको एक न्यू रिसर्च देता हूं। उनको सच में कुछ पता नहीं है। आजकल के हमारे बच्चों को जो हाईली क्वालिफाइड है, जो IITian है, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो अपने फील्ड में हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन ये गर्भाधान के इस फील्ड में उनको नॉलेज नहीं है और उनको सारी बातें बतानी पड़ती है। अब आप देखिए, इवन की अभी कल भी ये बात आई थी और हमारे यहाँ गर्भाधान, हाँ, जो पुंसवन संस्कार है, पुंसवन संस्कार की व्याख्या लोग ये करते हैं मेल बेबी के लिए, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पुंसवन संस्कार तो बहुत दूर है अभी। आप अभी देखिए, जो गर्भाधान संस्कार है, यहाँ पर गर्भाधान संस्कार का मतलब ये है कि यदि आपको मैंगो ट्री बोना है तो आप मैंगो ट्री ही बोएंगे, अगर आपको बबूल का पेड़ लगाना है तो बबूल का पेड़ लगाएंगे। आप बबूल का पेड़ लगा करके आम का फल नहीं ले सकते हैं, या आम का पेड़ लगा करके आप बबूल का नहीं ले सकते हैं। तो जो भी आपको लेना है वो स्टार्टिंग में ही आपको लगाना होगा। आपको मेल बेबी चाहिए तो मेल, फीमेल चाहिए तो फीमेल। आपके यहाँ फीमेल बेबी की स्थापना हो गई, लेकिन आप चाह रहे कि पुंसवन में जाकर के वो मेल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि फादर के सीमेन में जो आत्मा आती है, जिस आत्मा के लिए हम प्रारंभ में प्रार्थना करते हैं, चास्मान प्रजया वर्धय, वेद में हमने प्रभु से प्रार्थना की है कि वो हमें प्रजा से बढ़ाए, अर्थात हमारे यहाँ कोई ऐसी सोल, ऐसी दिव्य आत्मा आए और वो जन्म ले बच्चे के रूप में, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और जो मनुस्मृति इसके माध्यम से, या जो हमारे आयुर्वेद के माध्यम से जो जानकारी हमें दी गई है, जिन रात्रियों की जानकारी हमको दी है, कि अभी तो बच्चों को ये भी नहीं पता है कि कौन सी अमावस्या है, कौन सी पूर्णिमा है, किन किन रात्रियों को छोड़ देना है, किन किन रात्रियों को हम यूटिलाइज करना है। अच्छा, उनमें क्या होता है, इसीलिए क्या हो गया कि हमारे यहाँ इतने डिसेबल्ड बच्चे पैदा हो गए हैं कि हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। इतने डिसेबल्ड बच्चे पैदा हो गए कि हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। बड़ी परेशानियां आ गई हमारे सामने, क्योंकि बच्चों को नॉलेज नहीं है कि कंसीव किस रात में, किस नाइट में करना चाहिए, किस डेट में, किस तिथि में करना चाहिए। वो गड़बड़ी हो गई है। तो ये सारी क्लियर बातें की गई हैं कहाँ, इस संस्कार में। तो हम बच्चों को ये सारी नॉलेज देते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप, अच्छा ये देखिए, ये बात अपने यहाँ भारत में बात ये मैं कह भी नहीं सकता हूँ कि हमको सेक्स को पहले
डिसाइड करना है, जबकि गर्भाधान संस्कार का मतलब ही यह है कि आपको आज ही डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, यू हैव टू डिसाइड टुडे। आज ही आपको डिसाइड करना है मेल बेबी चाहिए कि फीमेल। और ये भी नहीं पता हमारे बच्चों को पहला बच्चा फीमेल की मेल। आप ये देखिएगा कितना अधिक काम है इस फील्ड का। तो हमारे यहाँ ऋषियों ने एक बात कही कि जो बेटियां होती हैं, जो फीमेल हैं, वो गॉड गिफ्टेड होती है, अर्थात उनके अंदर कुछ क्वालिटीज इनहेरिटेड होती है, कुछ क्वालिटीज उनके अंदर होती है। वो बहुत सोवर होती हैं, बहुत सिंसियर होती हैं, सहनशील होती हैं, काफी कुछ क्वालिटीज होती है। तो अगर पहला बच्चा जो पेरेंट्स के एक्सपीरियंस और नॉलेज की कमी के कारण आता है, अगर वो बच्चा बेटी आ जाता है तो बेटियां उन कमियों को नहीं बढ़ाती हैं, और यदि बेटा आ जाता है तो बेटे में कुछ गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज नहीं है, तो वो बेटा उन क्वालिटीज को बढ़ा भी नहीं पाता है, बल्कि और उन चीजों में घटिया कुछ कम रह जाता है। तो इसलिए मेरी रिसर्च में ये बात आई, मेरे अनुभव में ये बात आई कि अगर सबसे पहला बच्चा बेटी आए और सेकंड नंबर पर बेटा आए, तो ये सारी की सारी रिसर्च हम कर चुके हैं, ये सारी की सारी रिसर्च कर चुके हैं। अभी विद्या थी हमारे पास में, हमारे देश के लोगों के पास में विद्या थी। आज अपने देश के लिए, अपने देश में कानून बनाना पड़ा कि कोई इस तरह का प्रचार नहीं कर सकता है, कि कोई मेल बेबी के लिए प्रचार नहीं कर सकता है, और सारे लोग परेशान हैं। किसी के यहाँ, हमारे यहाँ हरियाणा में तो 13 बेटियां हो गई हैं एक बेटे की चाह में, एक बेटे की चाह में 13 बेटियां पैदा हो गई। अगर ये विद्या उनको पता होती तो उसका, अच्छा ये विद्या इतनी आसान नहीं है। मेरे यहाँ 7-8 मंथ तक वो कपल्स हार्ड वर्क करते हैं, उनका रूटीन इतना जबरदस्त होता है कि वो सारा उसको फॉलो करते हैं। अनुलोम विलोम, महर्षि दयानंद कहते हैं कि ये लगाना, ये लगा के ऐसे करना, ये करेक्ट नहीं है, आपको इट्सेल्फ करना है, इट्सेल्फ करना है। ये कहा कि अगर आपको मेल बेबी चाहिए तो आपका राइट नोस्ट्रिल चलना चाहिए और मदर का लेफ्ट, और यदि फीमेल बेबी चाहिए तो पुरुष का लेफ्ट और वाइफ का राइट। अब ये कितनी बड़ी साइंस है, कितनी बड़ी विद्या है। साइंस पूरे संसार में शायद गिने चुने लोग ऐसे मिलेंगे कि जो विदाउट हेल्प लिए, बिना हेल्प लिए केवल ये प्राणायाम कर सके, और ये विद्या दी है ऋषियों ने। अच्छा, इसके साथ में दूसरी विद्या, मूल बंध की विद्या दी है हमारे यहाँ। ये सारी की सारी विद्या जो है, कहाँ ये विद्या पहले करनी आपको, गर्भाधान संस्कार से पहले ही इतना अप टू डेट आपको अपने बच्चों को बनाना पड़ेगा। अब ये नॉलेज मिलती ही नहीं है। जब बच्चों को ये नॉलेज मिलेगी नहीं, कपल्स को ये नॉलेज मिलेगी नहीं, उन तक पहुंचेगी नहीं, तो कमिंग जनरेशन कैसी होगी, ये मैं आश्चर्य करता हूं। तो हमने सारी की सारी विद्याओं को जनरेट किया, इजाद किया, और इतनी मतलब कहने का अभिप्राय ये कि इतनी अच्छी प्रकार से उनको हम देते हैं, उन बच्चों को वो सारी सीख जाते हैं, और साथ साथ में उनकी 8 to 10 years लाइफ ही इंक्रीज हो जाती है। उन कपल्स की आयु बढ़ जाती है, उनका जीवन सुधर जाता है, उनका रहन सहन सुधर जाता है। अभी मैंने मॉर्निंग में अपने बच्चों के सामने बात कही कि गर्भाधान संस्कार में सबसे पहले 20 मंत्रों में ये बात कही गई है कि पत्नी के शरीर को रोग रहित किया जाए, उसकी हैबिट्स को सुधारा जाए, उसके रहन सहन को सुधारा जाए, उसका ग्लेज वापस लौटाया जाए। तो मेरी बेटियों ने मुझे कहा तुरंत कि क्या आप केवल लेडीज को ही समझाना चाहते हो, उसी पर ही क्यों आपका इंटेंशन बना हुआ है। तो जब मैंने उन मंत्रों को फिर से पढ़ा तो उस मंत्र में ये लिखा है, पति कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे अग्नि स्वरूप परमपिता परमात्मा, मैंने पहले ही आपको जान लिया है, और मैंने आपका जो पवित्र करने वाला रूप है उसको समझ लिया है, और उसको समझ करके ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी पत्नी के अंदर अगर कोई दोष है तो आप उसको दूर कर दीजिए। तो हमारे यहाँ अग्नि तो है ही, अग्नि से तो हम सारे उपचार करते हैं, और अग्नि के ऊपर इतनी रिसर्च है मेरी, मैं अग्नि के ऊपर कभी बोलूंगा, क्योंकि मैंने यज्ञ अग्निहोत्र पर भी पुस्तक लिखी है। तो अग्नि, और आगे चल करके पुंसवन संस्कार में ये अग्नि से प्रार्थना करते हैं, अग्निर्वै प्रथमो देवता सो अस्यै मुंचन्तु मृत्यु पाशात। वहां ये प्रार्थना की गई कि अग्नि ही मेरे बच्चे को मृत्यु के पास से बचा सकती है। तो अग्नि को जानना, अग्नि को समझना,
अग्नि और उससे अपने अपने आप को इल मेंटेलिटी से बचाना, तो पति पहले ही प्रिपेयर हो रहा है। पति के तैयार होने, अगर बीज ठीक नहीं होगा, अगर सीमेंट ठीक नहीं होगा और खेत ठीक हो गया, फील्ड ठीक हो गया, तब भी हमें रिजल्ट, जो डिजायर रिजल्ट है, नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों को ठीक होना पड़ेगा। और यदि मैं इससे पहले जाऊं, जहां मैरिज होता है, विवाह संस्कार होता है, मैरिज संस्कार इतना कमाल का संस्कार है। इट्स अ रिफ्रेशर कोर्स एंड इट शुड बी टॉट इन द यूनिवर्सिटीज। ये पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, ये कोर्स की तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब रवि प्रकाश जी से प्रार्थना करना चाहूंगा। जी जी, जरूर हम स्टार्ट करेंगे आपकी सहायता से, जरूर स्टार्ट करेंगे। आपने मैंने बहुत अच्छी गुरुकुल बात। कांगड़ी में, सर गुरुकुल कांगड़ी के मैंने कई वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट की, इट शुड बी हम टॉट, लेकिन हम किसी कोई नहीं सुनता सर, कोई नहीं सुनता है। आज बच्चे इतने बच्चे इतने दुखी हैं, उनके पास नॉलेज ही नहीं है, और वो इस दुनिया को ऐसे डिसेबल्ड बच्चे, कामी, क्रोधी, लोभी, बीमार, दरिद्र, ऐसे बच्चे संसार को दे रहे हैं। उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? तो देव इन शर्मा सारी जी, बातों को, एक ऐसा कोर्स मैं अपनी चेयर के माध्यम से लॉन्च करूंगा आपके साथ। जी, हम धन्यवाद। पहले ही सोच रहे थे, हम जी, पहले ही धन्यवाद। सोच रहे थे, तो और ये उसमें इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड आई हाँ, थिंक सर, रिसोर्स पर्सन। सर, वेद और विज्ञान को जोड़ के करेंगे और बहुत Yes. अच्छे से प्रचलित होगा जी। और वी हैव वन मोर भारद्वाज फ्रेंड्स सर, विद अस, डॉक्टर भारद्वाज। भारद्वाज जी, मैं कल आपको सुन करके दंग रह गया, और अरुण जी को और आपको और सारे आप लोग सच में, मैं सभी जो जेंट्स हैं उनको लेके आया हूँ, सब बहुत अच्छे हैं, मिलके काम करेंगे, आप चिंता मत करो जी, बहुत ही जी। अच्छा है जी। तो विवाह संस्कार में पति को कमाल का पति कह रहा है कि मैं सौभाग्य में सौभाग्यत्वाय हस्तम, मैं सौभाग्य के लिए तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूँ। तो सौभाग्य देखिए कमाल है। और मैंने पढ़ा है कि पति पत्नी के जीवन को उत्कृष्ट बनाए, इसलिए ऐसा नहीं कि गर्भाधान के 20 मंत्रों में ये कह करके कि पत्नी के शरीर में ये कमियां है, ये रोग है, तो कहीं उसको हम हे दृष्टि से देखते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्थात दोनों को ही अपने आप को अप टू डेट करना है, अप टू डेट करना है, और फिर आगे बढ़ना है। तो मैं कहता हूं इस दुनिया में, और मैं नहीं कहता हूं, संस्कार विधि, संस्कार चंद्रिका, महर्षि दयानंद, और महर्षि दयानंद के शब्द देख के आप दंग रह जाएंगे। मैंने मुंबई में हमारे 62 स्कॉलर्स थे, और बस एक ही बात उनसे पूछी थी, सभी सुधारों का सुधार, सभी सौभाग्यों का सौभाग्य, और सभी उन्नतियों की उन्नति करने वाला कर्म है, ये कहां लिखा है? यू वोंट बिलीव, क्योंकि हमने संस्कार विधि को ठीक से पढ़ा ही नहीं है। हमने संस्कार विधि को ठीक से, इन सब को छोड़ करके विद्वानों ने सब चीजों को हाईलाइट नहीं किया है। बहुत सारे विद्वानों ने इस पर कमेंट्री लिखी है, परंतु इस 20 मंत्रों को हाईलाइट नहीं किया है। और जिस समय एम्स में एक कार्यशाला हो रही थी, ये बर्थ डिफेक्ट को लेकर के लेक्चर हो रहा था, मैंने वहां डॉक्टरों से एक ही क्वेश्चन किया था, क्या हम डिजीज फ्री बच्चे नहीं दे सकते? तो उन्होंने कमेंट किया था, आप संस्कृत पढ़े हुए हो, आप आयुर्वेद पढ़े हो? मैंने कहा नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है सर। मेरा आंसर तो ये है कि आप एक रिनाउंड संस्था में बैठे हुए, रिसर्च करने वाली संस्था में बैठे हुए हो, और आपके यहाँ से ऐसा प्रोपोगेट नहीं होता है। क्यों नहीं 20 डॉक्टर्स आप इस काम के लिए लगाते जो दुनिया को प्रोपोगेट करे, भारत की जनता को प्रोपोगेट करे, और डिजीज फ्री बच्चा आए हमारे यहाँ। तो वो इस पर कुछ नहीं बोले। मैं डॉक्टर साहब, मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी होता हूं कि हम लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, परंतु जिन पॉइंट्स को हमें हाईलाइट करना चाहिए और जिन पॉइंट्स को लेकर के हम लोगों को विचार देना चाहिए लोगों को, हम वहां नहीं आते हैं, छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग छोड़ करके आगे चले जाते हैं। तो ये मुझे दुख होता है। इसलिए मैंने न नौकरी की, न मैंने व्यापार किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ महर्षि दयानंद को पढ़ा, और एक एक पंक्ति को 20-20 साल रिसर्च किया सर मैंने। और मैं आगे बढ़ता हूं तो गर्भाधान में मैं पहले ही डिसाइड करता हूं, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं मेल और फीमेल बच्चे पैदा करवा सकता हूं। मैं गर्व के साथ कहता हूं, मैं अपनी गवर्नमेंट से डर करके भी कहता हूं, लेकिन मैं भारतीय जो साहित्य है, हमारे जो लिटरेचर है, जो वेद ये कहता है कि मेरी 1000 पीढ़ियां टैलेंटेड पैदा हों, मतलब मेरे 1000 पीढ़ियां टैलेंटेड पैदा हों, और उसमें कहीं भी टैलेंट ब्रेक ना हो। मैं क्या करूं? इतनी सारी गुरुकुल की मीटिंग चल रही है यार, मैं भी देखी है। तो मैं ये कहता हूँ, आगे बढ़ता हूँ गर्भाधान संस्कार, और आगे बढ़ता हूँ मैं पुंसवन संस्कार। और मैं इस विवाद में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा कि पुंसवन संस्कार में
मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ आता हूँ कि जो मंत्र हैं उन मंत्रों में ये कहा गया है कि अब इस माँ के गर्भ को सुरक्षित करें। और कैसे सुरक्षित करें? जैसे तरकस में बाण सुरक्षित होता है। तरकस होता है कमर के पीछे, आप उछलेंगे भी, आप दौड़ेंगे भी, आप कूदेंगे भी, लेकिन वो तरकस से तीर नहीं निकलेगा। तरकस से तीर तब निकलेगा जब आप उसको निकालेंगे। तो वहां प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरी इस पत्नी का गर्भ इस प्रकार से सुरक्षित हो। अच्छा, जब मैंने पढ़ा और जो मेरे पत्नी का टाइम था तो मैंने पत्नी को धक्का दिया, पुश किया, मैंने देखता हूं इसका अबॉर्शन होता है कि नहीं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों नहीं हुआ। कमाल की रिसर्च है। मैं महर्षि दयानंद को युगों युगों तक जितनी बार भी मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा मैं उनका ऋणी रहूंगा। महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? महर्षि दयानंद कहते हैं ब्राह्मी, सोंठ और गिलोय, इन तीन चीजों को दूध में उबाल उबाल करके पिया करें। अच्छा, मुझे उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी, जैसा था वैसे मैंने किया, लेकिन उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला। अब तो मेरे को इतनी नॉलेज हो गई है कि मैंने क्विंटलों औषधि तैयार करके कपल्स को खिलाई है और सच में इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं और मैंने खुद भी खाई है। और इसके खाने से मेरा ब्रेन इतना फर्टिलाइज हो गया है, इतना फर्टाइल हो गया है, इतना कीन ऑब्जर्वर हो गया है कि अगर आप लोग मुझे महर्षि दयानंद के काम को इजी करना के लिए ऑर्डर करें कि देवशर्मा तुम महर्षि दयानंद के ग्रंथों को सरल कर दो। और जैसे आज चेतन भगत की बुक्स को लोग पढ़ते हैं, हमारे स्कॉलर्स कहते हैं कि हमारी बुक्स को नहीं पढ़ते लोग। मॉरिशस में सारे स्कॉलर्स कह रहे हैं कि हमारी बुक्स नहीं पढ़ते। मेरी 80,000 किताबें लोगों के घरों में जा चुकी हैं। तो जैसे चेतन भगत को पढ़ते हैं लोग, इस तरह से महर्षि दयानंद और वेदों को पढ़ेंगे। अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दें तो मैं इतना इसको इजी कर दूंगा। तो वहां पति कह रहा है पत्नी के पेट पे हाथ रख करके कह रहा है कि ये मेरी भी ड्यूटी है, तुम्हारी नहीं है। ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है कि बच्चे का पालन पोषण करो। मैं कई बार जब यूथ से बात करता हूं तो कहते हैं जी हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा हो गया। तो मैंने कहा आप में और डॉगी में क्या अंतर हुआ? बच्चा तो वो भी पैदा कर रहा है, आपने भी पैदा कर दिया। तो कह रहे नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि मैं अपनी पत्नी का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा और कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं पुत्र हंता का दोष मेरे ऊपर आ जाए कि ये अगर कहीं भी मेरा पत्नी का गर्भ खराब हो गया तो उसका दोष मेरे ऊपर आएगा। अगर कहीं भी मिस कैरेज हो जाता है तो उसके लिए मैं दोषी हूं। ये वहां पर कर रहे अपनी प्रतिज्ञा ले रहे हैं। और कई बार ये बात आती है कि इन 9 मंथ पीरियड में फिजिकल कांटेक्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। तो मैंने तो लिखा था कि नहीं किया जाए अपनी पुस्तक में, लेकिन यहाँ वर्ड बुक में मुझे एक बुक मिली और उस बुक पे थोड़ा पॉजिटिव दिया कि ऐसा हो सकता है। और नहीं तो ऐसे टाइम पर ही अधिकतर पुरुष वैश्याओं के पास भी जाते हैं। तो ये बात मुझे थोड़ी सी देर के लिए तो ठीक लगी, लेकिन फिर मैंने रिसर्च की। अथर्ववेद में मुझे एक मंत्र मिला और उस मंत्र में साफ लिखा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उस माँ के गर्भ को शीर्ण कर देंगे, अर्थात उसको आप खराब कर देंगे। ये बात वहां पर आई तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया कि ये समय अफेक्शनेट प्यार का तो है, आप प्यार तो दीजिए लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें निकल करके आई। पर इसमें जो एक कमाल की चीज आई, मैंने एक डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट पढ़ा जो न्यूयॉर्क से चला और उन्होंने ये कहा कि भाई डिजीज फ्री तो हम बच्चे देंगे देंगे, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहाँ सुपर्णोसी गरुत्मान पुंसवन संस्कार में पति अपने पति के गर्भाशय पर हाथ रख करके ये बहुत अच्छी तरह से संकल्प लेता है और कितने बढ़िया बात कहता है। और क्या कहता है कि मैं इस बच्चे को डिजाइन करूंगा। कैसे डिजाइन करूंगा? तो वहां कह रहे सुपर्णोसी गरुत्मान, और उसमें 9 प्रकार की क्वालिटी है उस बच्चे को बढ़िया बनाने के लिए। ये जो डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट दिया, तो इसमें तो ये आशंका हुई जो मैंने अभी पढ़ी थी कि एक उच्च नई जाति खड़ी हो जाएगी, सारे बच्चे एक तरह के हो जाएंगे। परंतु वेद का डिजाइनर देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए, वेद ने क्या कहा है।
कमाल की बात है। मैं बोल देता हूं उसको। और मैंने उस पर एक भजन बनाया। महर्षि दयानंद ने कहा, माँ को वीणा वादन सुनाओ, उस समय वीणा वादन सुनाओ, म्यूजिक। सामते तनु वाम देव्यम, ये मंत्र में एक भाग आया, सामते वाम देव्यम मनु। तो हमने क्या किया, हमने गर्भ विज्ञान संगीति तैयार कर दी। यहाँ पर टाइम्स फाउंडेशन के द्वारा एक गर्भ विज्ञान संगीत आया, लेकिन आप उसको सुनिए, कुछ समझ में नहीं आया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। लेकिन यहाँ हमको 20 साल लगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और हमने ये तैयार किया। अच्छा, इसमें एक भजन आता है, वो भजन, इस मंत्र, ये मंत्र बड़ा डिफिकल्ट है। सुपर्णो सी गरुत्मान त्रिवृत शिरो, और उसमें गायत्रम ते चक्षु वृहद रथम तरे पक्षौ, मतलब सारे अंगों की कामना की है। इट्स टू डिफिकल्ट, ये एक्सप्लेन नहीं किया अभी किसी विद्वान ने। तो हमने इसको पद्य में, अर्थात एक भजन में इसको थोड़ा सा तैयार करके रखा। अगर आप अनुमति दे तो मैं सुना सकता हूँ उसको थोड़ी देर में। वो कमाल की चीज है, वो ऐसे समझ में नहीं आता है। और बहुत, देखिए मैं कितना इजी मैंने इसको कर दिया है। मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ। सुनाइए। एक आया सर उसमें, यज्ञ यज्ञम पुच्छम, ये एक लाइन आई है, एक शब्द आया। तो यहाँ हनुमान जी को पूछ है, हनुमान जी को पूछ है, इसका आंसर कहीं नहीं मिलता। पूछ जो आया शब्द, ये यहाँ पर आया है। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, यज्ञ यज्ञम पुच्छम। यज्ञ जो करने योग्य है, अयज्ञ जो न करने योग्य काम है, उनमें पूछ एक बड़ा अवयव है। तो हमें बड़े अवयव को ग्रहण करना है। तो वहां देखिए, पशु सुरक्षित होता पूंछ से जानत सकल जहान, पशु सुरक्षित होता पूंछ से जानत सकल जहान, बच्चा सुरक्षित होता गुण से जैसे वीर हनुमान, प्रभु जी बच्चा हो ये महान, प्रभु जी बच्चा हो ये महान। शरीर सुंदर होवे इसका अंग अंग बलवान, शरीर सुंदर होवे इसका अंग अंग बलवान, शरीर सुंदर होवे इसका अंग अंग बलवान, कोई कमी ना रहने पावे घूमे सारा जहान, प्रभु जी बच्चा हो ये महान। कंठ मधुर हो इसका इतना स्वर का हो विद्वान, गा कर वेद ऋचाए सबको देवे वेद का ज्ञान, प्रभु जी। तो इस तरह से सारी की सारी क्वालिटीज, और ये मैं उस माँ को, उस बहन को कंठस्थ करा देता हूँ, और 4-5 महीने में खूब अच्छी तरह से। और जब वहां आते हैं, कहा सीमंतोलन संस्कार में, जो बुद्धि का संस्कार है, जो मेंटल डेवलपमेंट का संस्कार है, तो उसमें खिचड़ी बना करके मूंग, चावल और तिल की, और उसे एक पोट में अच्छी प्रकार से फैला करके उसमें 1 लीटर घी भरते हैं और फिर माँ को देते हैं, और दे के कहते हैं, इसमें पति पूछते हैं किम पश्यसी, तो माँ कहती प्रजाम पश्यामि। तो मैं कहता हूं, वहां कौन सी प्रजा को देखते हैं? पॉइंट देखेगा मेरा, जब माँ को आपने बताया ही नहीं है तो माँ देखेगी क्या उसमें? और लोग यूं ही सीमंतोलन संस्कार करवा देते हैं। तो मैंने इसको पूरी तरह से तैयार किया यहाँ से, और उस माँ को सिखाया। तो जब माँ उस घी में देखती है, तो ये भजन पूरा का पूरा उसके माइंड में सेट हो गया। और इस आकृति, ये भजन पूरा आकृति बनाता है, पूरी आकृति बनती, बच्चों को पूरा एक डिजाइन कर देती है माँ, और उस डिजाइन बेबी को उस घी में देखती है, और जब वो देख लेती है, एज इट इज बच्चा पैदा होता है। माँ बाप सुंदर हैं, लेकिन बच्चे सुंदर नहीं है, क्योंकि डिजाइन नहीं करते। आपने सब कुछ डिजाइन किया यहाँ पर, लेकिन अपने बेबी को डिजाइन नहीं किया। ये वैदिक डिजाइनर बेबी है, तो कमाल का है, और सारे बच्चों में अलग अलग होगा, कोई भी एक तरह का नहीं होगा। तो अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की, जब मैं संस्कार करवाता हूँ और माँ को कहता हूँ कि कंप्लीट आपको शांत होना है और इस तरह से आपको देखना है, तो कहीं से भी कोई आवाज आ जाती है, कहीं से कुछ आवाज आ जाती है, माँ डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं एक ऐसा स्टूडियो बनाऊंगा, साउंडलेस स्टूडियो होगा, जिसमें बैठकर के माँ इस संस्कार को करेगी और अपने आने वाले अभिमन्यु को, आने वाले श्री राम को, आने वाले श्री कृष्ण को डिजाइन करेगी।
और वो महर्षि दयानंद के शब्दों में एज इट इज पैदा होगा, एज इट इज पैदा होगा, चमत्कार हो जाएगा यहाँ। तो ऐसी सुंदर सुंदर बातें इन संस्कारों में है, इतने सुंदर सुंदर रिचुअल्स इन संस्कारों में है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, मैं तो सालों बोल सकता हूँ इन पर। आज तो मैं घबरा रहा हूँ क्योंकि पहली बार इतने लोगों में इतने महान 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 हस्तियां आज मेरे सामने बैठी हुई है, महान महान स्कॉलर्स मेरे सामने बैठे हुए जो मुझे सुन रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने, तो मैं थोड़ा सा घबरा करके बोल रहा हूँ आज, उतना फ्रैंकली नहीं बोल पा रहा हूँ। पर फिर भी जो मैंने चीज समझी है, मैं प्रैक्टिकल, आई एम ए प्रैक्टिकल मैन, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलता हूँ जो मैं प्रैक्टिकल नहीं जानता हूँ। तो ये मैं चरणों में प्रार्थना करता हूँ ऋषि दयानंद जी। और ऋषि अगर ना आते हैं, मैं तो उनके शब्दों पर ही इतना कायल हो जाता हूँ। अति बुद्धिमान, रोग रहित, शुभ गुण कर्म स्वभाव की होगी। ऐसी ऐसी हिंदी में कमाल की, हिंदी इतनी कमाल की महर्षि दयानंद की, तो वेदों से चुन चुन करके ऐसे मंत्र हमें दिए, इतनी बढ़िया बढ़िया हमको। ये जो मेरी औषधि है, ये औषधि इतनी कमाल की औषधि है, ब्राह्मी, सोंठ, गिलोय, अश्वगंध, सदावर, मुलहटी, इतना गजब का कॉम्बिनेशन है, मैं दंग रह गया। और कल बात आ रही थी कि 60 साल 70 साल के तक जवान रह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ आप 70 साल तक यंग रह सकते हैं, आयुर्वेद कहता है। और मैं 57 हूँ, 58 का होने जा रहा हूँ, और मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं 70 ईयर्स तक यंग रहूंगा, स्टिल यंग, एवरग्रीन। ये आयुर्वेद है। और आयुर्वेद नहीं, इतनी योग का इतने सुंदर सुंदर प्रोसेस है जो मैं बच्चों को बताता हूँ, वो कमाल कमाल है। तो दुनिया आर्य समाज को जाने समझे, और आपको मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जो बीड़ा उठाया है, आपने जो लोगों को ये काम दिया है। पहली बार समझता हूँ मैं शायद कि पहली बार संस्कारों पे इतनी बढ़िया सेमिनार हुई है, फर्स्ट टाइम। तो समय अधिक नहीं लूंगा मैं, क्योंकि अगले वक्ता भी आएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप सभी को हाथ जोड़ करके धन्यवाद कहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ध्यान पूर्वक सुना। कोई बात, कोई प्रश्न हो तो मैं स्वीकार करूंगा, अगर मैं उसका उत्तर दे सका तो। जी। Yes, the house is open. If anybody wants to ask any question, you may ask. नमस्ते देव सर, मैं डॉक्टर हवीशा आर्य बोल रही हूँ। जी नमस्ते जी। सर, मैंने अपने पहले बेबी के टाइम में ना आपकी भजन सीडी से लैपटॉप में कर लिए थे और सारे मैं सुनती थी, ये वाले बच्चा हो ये महान वाला। जी और अभी क्या है, वो लैपटॉप मेरा चोरी हो गया है, तो अब मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं आपके गाने भजन कहाँ से ले पाऊँ। जी जी, ये संस्कार वाले मुझे सेकंड बेबी के लिए चाहिए थे। मैं आपको भेज दूंगा। हाँ जी, जी मैं आपको भेज दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। We have two persons that raised their hands. Yeah. First is Roji Giri. Roji Giri, if you want to ask any question, you are welcome. The second person is Neelam Mahajan. थैंक यू सर। Yeah. आचार्य जी को बहुत प्रणाम और बहुत बहुत साधुवाद। बड़ा ही सरस उनका व्याख्यान रहा, और हम मेरे बड़ा ही एक आई ओपनर है, और इनके जो भजन बहुत ही अच्छा लगा। उनसे एक यही रिक्वेस्ट थी कि हमें ये भजन का या तो लिंक दें कहीं, अगर रिकॉर्डेड है, या लिरिक्स अगर हमें मिल जाए तो वी शिल बी ग्रेटफुल, ताकि मैं जो न्यू मदर्स मेरे कांटेक्ट में है उनको ये आगे प्रेषित कर सकूं। नहीं, हम देव शर्मा जी से लेंगे और इसको YouTube पे भी डालेंगे ताकि लोगों को लिंक मिले। अब तो हम इनके पीछे पड़े रहेंगे इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि सर ये खाली सेमिनार में ही खत्म नहीं हो जाना चाहिए। आजकल यंग बच्चे कहना मानते नहीं बिल्कुल, तो इसका थोड़ा प्रचार जितना ज्यादा हम करें तभी फायदा है। जो वुड बी लेक्चर भी YouTube पे आएगा। हाँ, जो वुड बी मदर्स और वुड बी फादर्स हैं, उनके ऐसे फोरम पे मैं भेजना चाहती हूँ जहाँ पर यंग बच्चे ज्यादा देखते हैं। धन्यवाद। Anybody else? So I think Dr. Dev Sharma is a Vedic scientist. He has done everything practically, and whatever he found through his practicals, he is just presenting it. More often than not, the scholars, they are just theoretical, give theoretical presentation, but here is a practical presentation, and he has proved it.
And he has also proved that whatever the Vedas have said and whatever Swami Dayananda has gleaned out from the Vedas, that is a sort of ultimate truth. And he has also given just try to show how the Vedas and Sanskar Vidhi, through Vedas and Sanskar Vidhi, we can have a designer baby, we can have a defect-free child, we can have an intelligent child, we can have a child of our choice. That's the most important thing. And he also just highlighted certain things these days. This Anuloma Viloma, this is very much prevalent, and even Swami Ramdev has propagated it a lot of very much. But the real aspect of doing this Anuloma Viloma is not, you are not to put your fingers on the nostrils, but through the force of mind, you will have to allow the air pass through one particular nostril. And I think this is only the best way. If you will do this exercise, do this practice every half an hour, every day, within 1 month you will find that you will be able to pass air through a particular nostril with the force of mind itself. And this will rejuvenate your body also. And he has quoted so many mantras, and I think because the time is running short, I'm not just elaborating on all these things. And whatever medicine he has told, that this Sont, Giloy, and Shatavari and all these things, it's a very good combination. He has told certainly through these combinations, through this medication, we can have a brainy child. Even the old persons, if they will use it, certainly they will not be able to they will be able to recollect all things, and their mind will be strong, and they won't be affected by forgetfulness. So these are the things, whatever Ayurveda has given and whatever the Swami Dayananda has pointed out towards the Vedas, it is all based upon the sciences. No doubt the modern scientists, they are also searching out and discovering all these concepts in a very most modern terms. But whatever the Vedic seers have told, that is eternal, and that can be utilized at any place, at any time, and it is always relevant. So I thank Dr. Dev Sharma a lot, and I think we will do, certainly we'll launch a course on this Sanskar system with his help through my chair. In fact, we are already considering all these things, because the Indian knowledge system now needs to be propagated. Whatever we are getting education, the formal education that we are getting in the universities and colleges, that is useless for in our life. Even now, it has become, earlier the people, they used to earn money through that, but now that has also failed. You can't earn anything. Even an engineer, he won't find any job. So I think this Indian knowledge system, this civilizational knowledge system, if it is taught and propagated, I think the human beings, the people, they will be more, they will get themselves employed, just like Dr. Dev Sharma told. He left all the jobs, his wife left the job, and they are doing the service of Veda. And through this service of Veda, they are getting everything in the life, satisfaction, happiness, health, and everything. So I thank this scholar